Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are at Suketi Fossil Park. Okay, hello everybody, and it's a nice place here. Actually, uh, for a long time we were thinking of coming here, and we were thinking that we should bring our kids also, but today they couldn't come. We will definitely bring them also. It's a very good place, education wise. Means uh, children should be brought here. I mean, and we have already visited also, and we will show you in the vlog. So many things are there that you should also watch, and if you get a chance, you should also visit this place. So, this vlog is going to be very informative. Stay with us and watch the full vlog. So here we are about to enter Shivalik Fossil Park at Suketi, almost 18-19 kilometers away from Nahan. And as we enter here, the statues of animal are here to welcome you. सबसे पहले ये hippopotamus ये दिखते हैं आपको, and definitely you will see further also many beautiful statues, the fantastic art over here. These are the tigers, and here the extinct जिराफ एक्चुअली जो विलुप्त हो चुके हैं, ये सब उनकी स्टैचूज़ बनाए हुए हैं यहाँ पे, जो भी प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं जानवरों की. And further you will find some major attractions over there. कुछ skeletons, कुछ fossils of prehistoric animals you can easily find here. And one more thing is there, the best time to visit this place is 9:30 to 5 p.m. Definitely 5 बजे के बाद आपको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलने वाला है. And one more thing, that on Tuesday it used to be closed. सो अगर आप संडे को जाना चाहते हैं, अपना संडे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, एजुकेशनल and knowledgeable place, and definitely each kind of detail is written over there. वैसे वहाँ पे गाइड भी अवेलेबल है if you want, you are taking any school tour over there, या आप अपने बच्चों को ही कुछ दिखाने के लिए ले जा रहे हैं तो वहाँ पे गाइड भी होते हैं. दे विल गाइड यू प्रॉपरली, दे विल शो यू एंड गिव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी फॉसिल्स विच आर देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर कि जो ये सुकेती फॉसिल पार्क है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट इन एशिया फ्रॉम वेयर फॉसिल कैन बी डिस्कवर्ड. So see, and so near to Nahan, so we can't underestimate actually our Sirmaur river. और इसके अलावा ये जो फॉसिल्स हैं, अगर आप जितना मैंने वहाँ पे पढ़ा है, तो ये कोई 8.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड. आई थिंक हम उस टाइम की कहीं पे इमेजिनेशन भी में भी नहीं था कुछ, हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा है जो है अर्ली मैन के बारे में या फॉसिल्स के बारे में या किस तरह के जानवर होते थे पहले, इन चीज़ों के बारे में. बट इफ़ यू आर गेटिंग अ चांस टू सी देम लाइव, तो सीरियसली ऐसा लगता है कि टाइम मशीन में बैठ के वहाँ पे पहुँच गए हैं. सो एज यू एंटर, डेफिनेटली यू विल हैव टू राइट योर नेम. एंट्री होती है वहाँ पे, एंड दिस इज़ द म्यूज़ियम एक्चुअली. एज यू विल एंटर हियर, सो द स्टैचूज़ ऑफ अर्ली मैन यू विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. So informative, their statues are there along with their historic names. और इनको छूना बिल्कुल मना है, you can't touch them even, that is the thing. And इसके अलावा कुछ एक skeletons of elephants you will find there, and some fossils at Suketi Park can transport people back through the eons. Definitely you will go with them, and when you will read this information about them, so अगर आपको history में interest है डेफिनेटली, या अगर आपको एशियंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, अर्ली मैन या जो भी आप लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट place where you can visit and where you can, even students can make their notes. Definitely जो students जो हैं वो जो PhD के लिए जाते हैं, जो लोग thesis पे search करते हैं, so वो लोग यहाँ पे आते हैं. But thing is that वैसे भी बच्चों को दिखाने के लिए या अपनी नॉलेज के लिए ये बहुत अच्छा प्लेस है. You must go here definitely. And इसके अलावा, as you can see here, these are the skeletons or the fossils of elephants.
सी हियर द पिक्चर्स वर ऑलरेडी देयर, और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे दरियाई घोड़ों के, एज यू कैन सी, ये दरियाई घोड़ों के स्केलेटन हैं। और दरियाई घोड़ों की भी उस टाइम कई तरह की जो थी किस्में होती थी, तो उनके अकॉर्डिंग विद देयर नेम्स, विद देयर हिस्टोरिक नेम जो है यहाँ पे इन्होंने विद ऑल इंफॉर्मेशन स्केलेटन्स रखे हुए हैं। डेफिनेटली ये फुल स्केलेटन नहीं है, बट वट एवर वर अवेलेबल टू द हिस्टोरियंस, तो उन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छे से कैरी किए हुए हैं। सो इसके अलावा एज यू विल गो फर्दर यू विल सी द ब्यूटीफुल पिक्चर्स ओवर देयर, बहुत अच्छे से जो है डेकोरेट किया हुआ है। और ये फर्दर यहाँ पे आप देखेंगे ये हाथी दांत के स्केलेटन हैं, एंड डेफिनेटली जो बहुत पुराने हैं, एज आई हैड टोल्ड यू ऑलमोस्ट 8.5 बिलियन। एंड हियर समथिंग एक्चुअली इंटरेस्टिंग, यू कैन सी ये भी दरियाई घोड़े, इनके स्केलेटन्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्केलेटन्स आर अवेलेबल हियर। और ये जो पिक्चर्स हैं दीज आर नॉट ओनली फॉर डेकोरेशन, बट यू विल सी हियर ये जो पिक्चर्स हैं, जो भी स्केलेटन है, ताकि आप उनसे अच्छे से रिलेट कर पाएँ, तो उन्हीं से रिलेटेड पेंटिंग्स वहाँ पे लगाई गई हैं। और ये जो है एक काइंड ऑफ मॉडल बनाया हुआ है एंशिएंट एलिफेंट्स का। एलिफेंट्स की बहुत सारी जो हैं काइंड्स इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। एंड ये शायद इसलिए भी है कि एक्चुअली अर्लियर ऑल्सो एंड नाउ अ डेज ऑल्सो, चाहे हाथी दांत है या आप कह लीजिए कि कई जगह हाथी की स्किन भी यूज़ होती है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। सो अर्ली मैन भी जो हैं दे वर क्वाइट डिपेंडेंट एक्चुअली ऑन सच एनिमल, तो इसलिए ये इजीली अवेलेबल थे उस टाइम पे, तो इसलिए जो है इनकी पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे बताई गई है। फर्दर इफ़ यू विल मूव, तो इसके अलावा वहाँ पे कुछ टर्टल्स के भी जो थे फॉसिल्स थे, उनकी भी पूरी इंफॉर्मेशन, हालांकि आई हैव नोटेड डाउन समवेयर, बट यस इफ़ यू विल गो देयर, आप भी वहाँ पे नोट्स बनाइए, जस्ट गो एंड लॉस्ट इन दैट वर्ल्ड। आपको सीरियसली ऐसा लगेगा कि आप पुराने टाइम में पहुँच गए हैं। यू कैन ईजिली फील देयर। यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टर्टल स्केलेटन, सो दिस वन इज़ दैट। जो टर्टल भी थे वो भी कई किस्म के और कई साइजेस के होते हैं, तो आप जानते हैं उसको। और ये जो है ये एशियन टर्टल फॉसिल्स हैं। सो you can see them. Definitely they are not in their real color, but we can easily get an idea of their structure and their size and many other things. And here also you can see many water animal pictures, and these animals were also bigger in size. अब जो एनिमल्स होते हैं जो इनके फर्दर प्रेसिडेसेस हैं वो इस साइज़ के नहीं हैं, बट जो पहले आपके एनिमल्स थे दे वर ऑफ बिगर साइज़। उनके जो हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग था, उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ जो थी वो कहीं ज़्यादा थी आजकल के एनिमल्स से, डेफिनेटली सेम एज ह्यूमंस। एंड हेयर ऑल्सो यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ वुड्स, ये भी बहुत पुरानी वुड्स हैं। सो ये चीज़ें हमें बताती हैं एक्चुअली कि हाउ एक्चुअली द क्लाइमेट चेंज एंड किस तरह से हम लोगों के ऊपर असर डला है, किस तरह से जो है हम लोगों की ग्रोथ पे और हर चीज़ पे असर डला है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो आपकी वुड है, चाहे आपके जो है कुछ भी रिसोर्सेज हैं, चाहे आपके वाटर एनिमल्स हैं, आपकी जो सॉइल है उस पे किस तरह से इन आपके क्लाइमेट असर डालते हैं, तो यू कैन ईजिली रिलेट विद दैम हियर। एंड फर्दर इफ़ यू पीपल विल मूव, सो हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन्स। सो हम सब ने जो है अपने बचपन में definitely in our geography, history and civics book somewhere we had read in SST about the stones, how actually early men used the stone to produce fire. So many kinds of stones were available there, और ये भी इसलिए यहाँ पे प्रिजर्व है कि जिस तरह से इनकी जो है कठोरता बताई जाती है, they were also quite solid as compared to the present time, और इसीलिए ये आज तक at their same condition they are surviving here.
बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मुझे अचानक से याद आया 1337 जो था सन मेंशन था, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व की हुई है। एंड इन दैट वे इट इज़ रियली एक्चुअली अ स्पेशल थिंग। एंड हम नाहन वालों के लिए नहीं, बहुत दूर से भी लोग जो रिसर्चर्स हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं, दे यूज़ टू विजिट दिस प्लेस एंड दे गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ओवर हियर। सो ये जो है, ये मैंने आपको एक जो इन्होंने एनिमल फॉसिल्स जहाँ पे रखे हुए हैं, या कुछ एक जो स्टोन्स यहाँ पे रखे हुए थे, वहाँ का दिखाया है। डेफिनेटली विल एंटर टू द अनदर रूम, आमने सामने ही वहाँ पे 2 रूम है, एंड विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ओवर देयर। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल अबाउट दैट ऑल्सो. And yes, I enjoyed my day today a lot. It was of my choice. Definitely I wanted to spend my day like that. और अगर आपको कहीं पे 10% भी नॉलेज मिल रही है ना, सो डेफिनेटली आपका डे बन जाता है. आज छुट्टी थी एंड यस, नॉलेज देने की बजाय हम नॉलेज लेने गए थे एंड वी गॉट सक्सेस. सो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. And here we are entering to the next room exactly opposite of that one, जहाँ से मैंने अभी आपको सब कुछ दिखाया था. And you will find many interesting thing in this museum also related to the evolution of man. Every information along with different stages of the evolution of man is mentioned there, और pictures के साथ दिखाई हुई हैं. And here I find समथिंग अमेजिंग. ये जो है, ये शिवालिक और हिमालयन रेंजेस का बहुत ही खूबसूरत सा मॉडल है यहाँ पे. एज यू विल एंटर देयर, तो सबसे पहले नज़र इसी पे जाती है. इसके अलावा यहाँ पे जो है डिफरेंट डैम्स जो हैं वो मेंशन है इसी मॉडल में. डिफरेंट रिवर्स आर मैंशनड हियर. और अगर आप इसको थोड़ा पास से देखेंगे ना, तो यू विल जस्ट लॉस्ट इन दोज रेंजेस ओनली. आपको लगेगा कि यू शुड रियली विजिट सच प्लेसेस. और ये थोड़ा सा मैंने दूर से लिया था, सो दैट शुड गेट एन आइडिया कि ये कैसे लगता है. इसके अलावा ऑपोजिट साइड जो है, यहाँ पे डिफरेंट स्टोन्स रखे हुए थे. लाइक दैट वन वाज लद्दाख एंड दिस इज़ ऑफ न्यूमोलिटिक लाइम स्टोन. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस डेफिनेटली स्टोन्स वर अवेलेबल देयर. और ये भी जो है, ये बहुत एंशियंट स्टोन्स हैं, उस टाइम के वेदर के अकॉर्डिंग हैं. डेफिनेटली इफ विल गो फॉर देयर सर्च नाउ, तो हम सेम काइंड ऑफ मटेरियल आई डोंट थिंक वी कैन फाइंड right now at the present stage, but here they have preserved everything. और thing is that कि कुछ भी change नहीं है, they are as it is as they were earlier, जितना हमें बताया गया. इसके अलावा हर तरह की जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे साथ में ही लिखी हुई है. एंड यस, here our Nahan Thrust is mentioned. This was there, जिसमें आपकी डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल्स मेंशन की हुई हैं. और शायद आप कैमरा में भी देख सकते हैं कि हर जो लेयर्स है सॉइल की, वो टोटली डिफरेंट दिखाई दे रही है. एंड यस, दिस इज़ फ्रॉम आउटसाइड आई हैड टेकन. एंड आई जस्ट सजेस्ट यू पीपल, इंस्टेड ऑफ गोइंग, जैसे हम फ़न के लिए तो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं एंड जाते रहेंगे, बट यू मस्ट विजिट.
So like this, we spent a really amazing day today, and I wanted to share with you, so that's why I made this vlog. And hope you like it, and if you have liked it, so please share, like and subscribe to my channel. And I will try my best to give some informative videos to you further also. And yes, with the blessing of Ma Amba Devi. This was the mandir over there at Vikram Bagh. So we stayed there for a while. I'm ending my vlog over here. Thank you so much for watching.